محترم ڈاکٹر علامہ حافظ محمد ادریس عزیز صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں محترم سید اجاز حسین بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں محترم چودھری ناصر محمود صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں محترم راجہ غفور افضل صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور سکندر صدیق صاحب سے گزارش کروں گا بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. سب سے پہلے میں آج کی اس پروکار تقریب جو کہ ہمارے عظیم لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی یاد اور ان کے احسان ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس میں تشریف آوری پر میں اپنی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کے تمام عہدیداران کی طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈنمارک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کیا. تمام انتظامات پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں ڈنمارک کی خوبصورت آواز قاری محمد ندیم اختر صاحب اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله سبحان الله ما شاء الله. الذي جعل لكم من
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ. تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت کے اشعار کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نعت رسول کہتا ہوں ذرے ذرے کو طور کہتا ہوں. رند و مدد میں یارو شان رب غفور کہتا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد رشید بھٹی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی نعت ہمیں سنائیں. یہاں پہ فرمائش ہے بھٹی صاحب آپ کی ایک بڑی اچھی نعت آپ پڑھتے ہیں. جب بھی مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں تو آپ ذرا درگاہ میں پیش کریں تو ہم مشہور ہوں گے آپ کے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محترم بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزا دے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج کا یہ پروگرام محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سیاسی جمہوری اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے. یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ جب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا نام ایک روشن ستارے کی طرح نمایاں رہے گا. جمہوریت کے لیے آپ کی خدمات بے مثال ہیں. جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ عوام کے اوپر عوام کی حکومت. محترمہ زندگی بھر پاکستان کے غریب, مزدور, کسان اور مظلوم عوام کی حمایت کرتی رہی ہیں, اور جب بھی وہ دنیا سے گئی انہوں نے شہادت کا عظیم رتبہ ملا اور وہ اپنی عوام میں شہید ہوئی. ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ محترمہ کی قربانی کو رائے گاہ نہ جانے دیں گے اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے. میں دعوت خطاب کے لیے پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین اور ریڈیو آپ کی آواز کے ڈائریکٹر راجہ غفور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम मुजीब रहमान कुरैशी साहब, हाफिज़ अदरीस साहब, शाह साहब, नासिर साहब और हमारे पार्लियामेंट के इंडिपेंडेंट के चेयरमैन सिकंदर सदीक साहब और हाज़रीन मजलिस, मुझे बड़ी खुशी हुई जब हाफिज़ जमील साहब ने तिलावत की, दिल खुश हुआ, रूह खुश हो गई। इसी तरह भी नात पढ़ी भट्टी साहब ने, बहुत मज़ा आया। और मैं समझता हूँ ये क्रेडिट अदारा मनाज़िल कुरान को जाता है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस अदारे की लाइव मेंबर थी। वो सीन भी मुझे याद आ गया जब वो मेंबर अपना लाइव मेंबर बन रही थी तो उन पेपरों को साइन कर रही थी। वो तस्वीर मेरे सामने अभी जो घूम रही है। फिर मैं पीपल्स पार्टी को भी मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने अपने साथियों के साथ, हमेशा मैंने वो चेहरे देखे जो आज से 30 साल पहले मैंने देखे थे, वो पीपल्स पार्टी वाले थे। आज 2022 में देखे तो आज भी वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो ये भी एक किसी अपने लीडर के साथ जो मोहब्बत होती है उस पर वो ये भी कायम रहते हैं। मैं जब आ रहा था घर से तो मुझे पता ही नहीं चला खुद कि 15 साल गुजर गए हैं। जब मैं प्रोग्राम कर रहा था बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा जब शहीद हुई तो मैं उस वक्त लाइव प्रोग्राम कर रहा था। जिस स्टेज पर वो थी वहाँ मैं असगर शाद साहब थे, वो भी जिन्होंने स्वान उम्री लिखी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की। उन्होंने नंगे पाँव एक कॉलम लिखा था, उस पर उनको भुट्टो साहब ने, भुट्टो मरहूम ने उनको एक जो है सोने का तख्मा भी दिया था। ये सारी बातें मुझे रास्ते में याद आती गई। तो ये ख्वातीन के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, छोटे छोटे देहातों में जहाँ जच्चा बच्चा का मसला होता था उसके लिए उन्होंने काम किया, ये सेफ कार्ड के लिए किया, बहुत कुछ उन्होंने किया। तो जब मैं बात कर रहा था, लाइव बात कर रहा था असगर शाह साहब से, तो वो कह रहे थे कि आपका वो ग्राइन मुझे कहने लगे जो आज पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म भी रहे और आज स्पीकर है, कहते हैं वो जा रहे हैं अपने मोहतरमा के साथ जो है ना। तो ये बात करते करते मुझे एकदम उन्होंने कहा ओए, और ये फ़ोन उसके बाद मेरा जो है राब्ता जो कट गया। मैंने कहा पता नहीं यार बैटरी ख़त्म हो गई उनके। तो जब मैंने उनसे पूछा 5-10 मिनट के बाद मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने ये मुझे रोते हुए मुझे ये वाक़या उन्होंने सुनाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गए। मैं सिविल अस्पताल में, चूँकि वो पिंडी के रहने वाले थे, इन सारी चीज़ों को वो जानते थे, कहते हैं कि मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। तो जो लोग, उनकी एक खूबी ये थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की कि वो अपने लोगों में घुल मिल जाती है, कोई तकब्बुर नहीं था। एक अमीर घराने में पैदा हुई, जब उनके सामने वर्कर जाता था तो वर्कर के साथ बात भी करती थी, मिलती भी थी, घुल मिल जाती थी। कोई फ़ोटो बनवाना चाहे तो कभी वो मना नहीं करती थी। मैं समझता हूँ कि आप उनका दिन मना रहे हैं। मुजीब साहब, आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया मोहतरमा गफूर अफजल साहब। मैं मोहतरम मोहम्मद हुसैन हसैनी साहब से, जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, शायद कहने को तो बहुत कुछ है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ जो है उसमें एक स्याह दिन भी था। एक दिन था जब लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया, फिर उसी जगह हमारे लीडर को भी शहीद कर दिया गया। वो हमारे लिए एक अजीब ही तारीख़ है, क्योंकि शायद जिसकी वजह से हम आज तक उन मसाइल से निकल नहीं सके जिनसे हमें निकलना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि हम कब निकलेंगे, लेकिन मोहतरमा की और उसके ख़ानदान की जो रवायात रही हैं, जिस वजह से सियासी तारीख़ पाकिस्तान की अभी तक ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि हम जैसे, आप जैसे और पाकिस्तान में वो करोड़ों लोग जो इस उम्मीद से ज़िंदा हैं कि हमारा मुल्क एक दिन एक अवामी सल्तनत में तब्दील होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये तारीख़ जो है एक बार फिर लिखी जाएगी। और मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि इतने अरसे के बाद हम उसी जगह आज भी खड़े हैं जहाँ हम 1977 से लेके अब तक पॉलिटिकल स्ट्रगल में हम रहे हैं। और हमने हर फोरम पे पाकिस्तान का दिफा किया है और जमहूरियत का दिफा किया है। बड़ी नवाजिश और बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन हसैनी साहब। हम ही से
फरोज़ां शम्मे वफा, हमी से बना है मोहब्बत कदम, मिटाकर अंधेरों का नामो निशान, उजालों की बस्ती बनाएंगे हम। मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ मोहतरम काशिफ महमूद खान साहब को। एक दफा नूशी आवाज़ रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसी जे दर्द बन के जान दो मेरे लूं दे विच समा जान दो किसी जे बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं हमारे एक अजीम लीडर रहनुमा पुराने यानी हम इनके नज़र में बच्चे हैं। मैं सिर्फ चंद अशार के लिए दावत देता हूँ मोहतरम बरकत पिया साहब को कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लव मिले ना जद तक बाजना दा, लव मिले ना जद तक बाजना लाली कौम दे चेहरे ते आम दी ने। लव मिले ना जद तक बाजना लाली कौम दे चेहरे ते आम दी ने। अलफ आया सा लाल खरीदने नू, अलफ आया सा लाल खरीदने नू ते ती कोले दा बनस पा बैठो, ती कोले दा बनस पा बैठो। एवें हट्टियों हट्टियों एवें कट्टियों चोर सुधा बैठो, एवें हट्टियों एवें कट्टियों चोर सुधा बैठो। ते जिस शाह दा तू माल बरान कीता रकम होसी तू गुआ बैठो। आया नेकियां करन वास्ते ते बुराइयां से वाले को कुछ नहीं देता। ते अर्ज है इसी कि इंसान जेड़ा भी किसी ना वादा करे और ते कायम रहे। वाह माशाल्लाह। अपने लोग कोशिश करे जो भी किसी ना अच्छा बुरा जो भी है उन्हें माफ कर दो। ये उम्र का हिस्सा ही ऐसा है। अल्लाह खुश और खरम रखे। बस एनी इजाजत सी ते इजाजत में पुकार थी। अब मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ अलहाज मोहम्मद अरशद महमूद तारड़ साहब को तशरीफ लाएं। और मैं आ जाना वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
जाना कोई कार ते कर जावा औड़क नूं ते टुर जाना कोई कार ते कर जावा सरकार दे बुए ते सिर रख के ते मर जावा सरकार दे बुए ते सिर रख के ते मर जावा सरकार दे रोज़े दा दीदार नरालाए सरकार दे रोज़े दा दीदार निरालाए मुड़ मुड़ के प्यावे मुड़ मुड़ के प्यावे जद वेखा ते ठर जावा जद वेखा ते ठर जावा ए दिल भर दे सहारे ते पहुंचांगा किनारे ते विच इश्क समुंदर दे डूब जावा के तर जावा विच इश्क समुंदर दे डूब जावा ते तर जावा इस इश्क दी बारी दा दस्तूर अनोखा इस इश्क दी बारी दा दस्तूर अनोखा जित जावा मोहब्बतां नूं हर चीज में हर जावा जित जावा मोहब्बतां हर चीज में हर जावा औड़क नूं ते टुर जाना औड़क नूं ते टुर जाना कोई कार ते कर जा माशाल्लाह ये बात अल्लाहु अकबर माशाल्लाह जी न डगमगाए कभी वफा के रास्ते में चराग हमने जलाए हवा के रास्ते में ये नफरतों की फसलें जहालतों के हसा न रह सकेंगे हमारी
सदा के रास्ते में मैं दावत खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ डॉक्टर अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अजीज़ साहब से आए हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डेनमार्क की तरफ से, जुमला फोरम्स की तरफ से, पाकिस्तान पीपल पार्टी डेनमार्क, उसके जुमला अहदेदारान, ज़िम्मेदारान, वबस्तगान, मुहिब्बीन और बिलखुसूस उनके सरपरस्त और सदर मोहतरम मुजीबुर रहमान कुरैशी साहिब, जिनकी दिन रात की मेहनत से और ये काफ़ी दिनों से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काविश कर रहे थे, और इवन ये कि कारकुन आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया सय्यदुल कौमी खादिमुहु, कौम का सरदार वो होता है जो जितना बड़ा खादिम होता है, जो जितना बड़ा कारकुन बन के काम करता है। तो अल्लाह ताला मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब की काविश को कबूल और मंजूर फरमाए, इनकी पूरी टीम को जिन्होंने हमें इस नेक मकसद के लिए जमा किया। इनके साथ मोहतरम इजाज़ हैदर बुखारी शाह साहिब, मोहतरम नासिर महमूद साहिब, मोहतरम राजा गफूर साहिब, बरादर मुकर्रम सिकंदर सिद्दीक साहिब, अरशद तारड़ साहिब। अगर मैं सब का नाम लूँ, मेरे लिए सब भी माशाल्लाह मोतबर हैं, और मिनहाजुल कुरान के ज़िम्मेदार होने के नाते फ़र्ज़ भी बनता है आपका तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया भी अदा करूँ। मोहतरम शफीक शाह साहब, शफीक साहब, सैयद तौकीर शाह साहब, बरकत साहब, आगा नदीम साहब, असलम अलीपुरी साहब, अली भाई गोंदल साहब, साजिद भाई, मोहतरम हाजी शफीर साहब, शरीफ साहब, रशीद भट्टी साहब, अल्ताफ़ साहब और दीगर जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मिनहाजुल कुरान हमेशा मोहब्बतों का पैगाम देता है, और दीन की असल रूह जो कि पैगाम मोहब्बत, अमन, सलामती, चाशनी, इवन ये कि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी हो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कायदा क्या अता फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, मगर रिस्पेक्ट इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते, अल्लाह का बंदा होने के नाते हर एक की रिस्पेक्ट है। और मिनहाजुल कुरान के दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले हैं और हर वक्त खुले हैं, और अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह ताला खुले रहेंगे। अजीज़ान गिरामी कद, आज की जिस तकरीब के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं, वो एक ऐसी शख्सियत जो उम्मत मुस्लिमा की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का शर्फ रखती हैं। वो ऐसी शख्सियत कि जिनका 21 जून 1953 1953 जून को जुल्फ़कार अली भुट्टो के घर, जिसका जन्म होता है एक मासूम सी बच्ची का, उस बच्ची का नाम बेनज़ीर रखा जाता है। अपने नाम का इस्तिआरा बनने के लिए, बेनज़ीर नाम को इस्तिआरा में तब्दील करने के लिए, एक फिक्र बनने के लिए, एक लोगों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए जो जद्दोजहद गुजरी, वो कई सालों पर मुहित जद्दोजहद है। और किसी बड़े बाप का बेटा होना ज्यादा शर्फ की बात नहीं, किसी बड़े के घर में पैदा हो जाना बड़े एजाज की बात नहीं। बड़े एजाज की बात यह है कि जिस बड़े के साथ आपको निस्बत हुई है, जिसकी वजह से आपको वकार मिला है, जिसकी वजह से आपको इज्जत मिली है, जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपके नाम को बुलंद किया है, आप अपने किरदार के साथ, अपने अमल के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ मुसावात की तालीम देते हुए
اخوت اور رواداری کی تعلیم دیتے ہوئے، جمہوریت کی کردار کی تعلیم دیتے ہوئے، لوگوں کے اندر طبقاتی نظام کو مٹاتے ہوئے، لوگوں کے اندر مساوات کا نظام دیتے ہوئے، اپنی کاوشوں کو جاری رکھنا اور محنت کر کے جس نام کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے اس کو مزید بام عروج عطا کر دینا، یہ بڑے کمال اور بڑی شان کی بات ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، طوفان آیا، طوفان نے آ کر سب کو تباہ کرنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا، میرے بیٹے کو بھی آج نجات عطا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نوح، اگرچہ تو میرا نبی ہے، میرا مقرب ہے، میرا محبوب ہے، مگر تیری اولاد تیرے نقش قدم پر نہیں، تیری اولاد میری اطاعت کے رستے پر نہیں، تیری اولاد میری فرما برداری کے رستے پر نہیں، تیری اولاد خوف خدا کے رستے پر نہیں، تیری اولاد جمہوریت کے رستے پر نہیں، تیری اولاد طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے رستے پر نہیں، تیری اولاد کرپشن کو ختم کرنے کے رستے پر نہیں۔ اس وجہ سے اے نوح، تیری اولاد ہونے کے ناطے بھی وہ نجات نہیں پا سکتا، اس کو نجات ملے گی اس کے اپنے اعمال سے ملے گی۔ اس لیے عزیزان محترم، بڑے باپ کا بیٹا ہونا، بن کے دکھانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ، آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کو جب بھی دیکھا، شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کبھی ان کے سر سے دوپٹہ ہٹا نہیں دیکھا۔ انہوں نے بھی تو سیاست کی نا، ہم آج کون سی سیاست کا نام لیتے ہیں؟ ہم کس رواداری اور محبت کا نام دیتے ہیں؟ ہم کس ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں؟ ہم کس نظام عدل کا نام لیتے ہیں؟ ہم کس نظام جسٹس کا نام لیتے ہیں؟ وہ مسلم امہ کی پہلی خاتون لیڈر، ساری زندگی اس محترمہ کو کبھی اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا، ہمیشہ نماز کی پابندی کرتی، منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ بنی، لندن کے اندر انہوں نے فارم کو فل کیا، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کو فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب میری سیاسی وابستگی تو پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، مگر میری روحانی وابستگی، میری قلبی وابستگی، میری مذہبی وابستگی ہمیشہ زندہ رہوں یا قبر کے گھڑے میں چلے جاؤں، میری روز قیامت تک وابستگی منہاج القرآن کے ساتھ رہے گی۔ اور وہ اپنے اس دستوں پر یوم اپنی شہادت کے دن تک قائم رہے۔ مگر محترمہ بینظیر بھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ کو 27 دسمبر 2007 کو ایک بہت بڑے سانحے کی نظر کر دیا گیا۔ محترمہ جب تک زندہ رہی، پاکستان کی سیاست میں دیکھیں رواداری موجود تھی، ایک دوسرے کا حیا موجود تھا، گفتگو کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا احترام اور رسپیکٹ کرتے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد دیکھیں نہ کردار کا عمل رہا پاکستانی سیاست کے اندر، نہ اخوت کا کردار رہا پاکستانی سیاست کے اندر، نہ خوف خدا کا کردار رہا پاکستان کے اندر۔ تو عزیزان محترم، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے ہمیشہ گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ کا۔ میں اب کیونکہ ہم نے آج یہ پروگرام، کیونکہ یہ دعائیہ پروگرام تھا اور ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو ہم اتنا لمبا نہ کریں، تو میں گزارش کروں گا اسلم علی پور صاحب سے کہ اسٹیج پہ آئیں اور ٹائم تھوڑا سا لے لیں، کیونکہ ہم نے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں انتہائی ادب سے اپنے سارے چمکتے دمکتے چہرے رکھنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہوں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آج تاخیر سے آیا ہوں، اور کہتے ہیں تاخیر ہوئی تو کوئی بات سے تاخیر بھی تھا،
मेरी अहलिया का ऑपरेशन परसों को होगा दिल का, सो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह से मैं एक तालिब इल्म हूँ और कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मैं हमेशा जब कोई अजीम शख्सियत होती है तो मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि कोई तो चीज़ है जिसने इसको अजीम बनाया। मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद इरफान साहब से कि एक मुख्तसर सा कलाम प्लीज़ आप पेश करें, आपकी ख्वाहिश। वाहदाहू ला शरीक दी हमद पहला ते जिदे अमर दी सट थड़ुकदी नहीं, ओ दसे भेत परवानिया सड़न लग्या ते शमा नूर विच परदियां लुकदी नहीं। तेरा ही खां ते तेरे ही करा शिकवे ते रोजी फेर भी नकारे दी रुकदी नहीं। क्यों ना शाह शजर थी जाए कट्टी ते जेड़ी ना तेरा सुन के झुकदी नहीं। ते जेड़ी अख नू मालका रख तेरी उत्ते लखा हजानिया थुकदी नहीं। बेमिसल ते ला महदूद मौला बंदे मुक जाना है सिफत मुकदी नहीं। ते सारी उम्र प्या लिखा खत्म होनिया नहीं। सिफता हुजूर पुर नूर दी शान दियां वदोहा मुखड़ा व लैल जुल्फा ए ते सूरतां ने हास कुरान दियां। काफर मारन पत्थर आप दुआ करन ए ते आदतां सन अरबी सुल्तान दियां। सारे मोमन रल के पढ़ो कलमा ते तांगा रखो मदीने नू जान दियां। ते जदों मौत आवे दिल दे विच हाने लाट इश्के मुहम्मद दी बली होवे। जदों कबर विचों हशर नू बाहर आवां मुंह ते हाक मदीने दी मली होवे। ते जिदी कबर मदीने विच बन जावे क्यों ना ओ फिर बख्तां दा वली होवे। और कुछ नहीं मंगदा ऐ हाफिज मैं होवां मदीने दी गली होवे। ते कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत ए दुनिया दुखां दा घर तौबा आई मौत बिना इहदा हल कोई नहीं। घड़ी घड़ी एक घाटे दी आ रही है ते पिछा आंदा लंघिया पल कोई नहीं। मैं अब एक मुख्तसर सा पैगाम है हमारे सैयद तकीर हुसैन शाह साहब हैं वो देना चाह रहे हैं। तशरीफ लें स्टेज पे जो आपने कल बात की थी। मैं इसलिए मुख्तसर कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जैसे टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत अपनी जगह, इंसाफ और सच बोलना अपनी जगह। सबको पता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। भट्टू साहब को मैं बचपन से जानता था क्योंकि मुर्तज़ा मुझसे 2 साल जूनियर क्लास में कराची पढ़ता था। दोस्ती अपनी जगह। भट्टू साहब को मैंने ये देखा है कि आज लोगों के पास सिगरेट खरीदने के लिए पैसे होते हैं। जब वो 9th में पढ़ता था तो गवर्नमेंट की जो सिगरेट होते थे ना पैकेट वो उसके पास होते थे। मैं कहता था तुम्हारा बाप प्रेसिडेंट बन गया और जालिम तेरे पास पैसे नहीं। वो कहता था नहीं बाप मारता है। वो कहता नहीं ऐसा काम नहीं करना तो लिहाजा ये उठाता हूँ। शराफत उस घर की थी। लोग हम जैसे उसको मर्जी के भट्टू को बेनज़ीर को मैं उस वक्त जानता था जब मैं उनके घर जाता था। हम 5-6 दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़े थे कराची। बेनज़ीर यहाँ पे आई, यह बरकत भी थे रेस्टोरेंट में। उन्होंने बकायदा मुझे टाइम दिया। मुर्तज़ा भट्टू आए खिलजी साहब के पास, बकायदा उसने मुझे बुलाया। हालांकि उसको पता था कि वो चौधरी ज़ौलाई केस में वांटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी हम खिलजी साहब ने बुलाया। भट्टू साहब से जो नेक काम हुआ, कादियानियों को उन्होंने काफिर करार दिया। हम उनको सलूट करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला काम लेता है, जन्नत में जाते हैं। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भाई कोई जनती है। बेनज़ीर भट्टू इस्लाम के लिए उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, लेकिन चंद शराब पसंदों ने उनको आगे जाने नहीं दिया। अगर उनको मौका मिल जाता उस वक्त और आज वो जिंदा होती तो पाकिस्तान का नक्शा कुछ और था। खुदा आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया मोहतरम शाह साहब। हमारे प्रोग्राम के दरमियान में मालमो से एक हमारे गेस्ट तशरीफ़ लेके आए इमरान कुरैशी साहब, हमको खुश आमदीद कहते हैं। और उसके साथ साथ कश्मीर सोसाइटी के सदर राजा सादिक क़य्यूम साहब तशरीफ़ लेके आए, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
वतन से उल्फत है जुर्म, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। है किसी की गर्दन पे खून न हक, ये फैसला लोग करेंगे। मैं दावत खिताब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क के मरकजी रहनुमा और सालों साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने सदारत की, उनका दावत खिताब देने के लिए मैं कहूँगा चौधरी नासिर महमूद साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात खिताब करें। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज का आगाज़ करूँगा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेज़बान इदारा मिनाजुल कुरान का, डॉक्टर अजीज साहब का, जिन्होंने हमारे लिए दरवाजे खोले और हमें इन्होंने जगह अनायत फरमाई और ये आज इनेकाल मुमकिन हुआ। और पूरी तंजीम का नाम ना लूँ तो ये ज़्यादती है, क्योंकि हम पिछले 40 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वो सारे मेरे साथी हैं, पुराने हैं, कुछ नए भी साथ मिले। राजा मोहम्मद अनीफ साहब 40 साल से दोस्ताना है, राजा साहब के साथ बैठे हैं। अशरफ ईरानी साहब जियाले हैं, भुट्टो साहब के ज़माने के, उडमसा से आए हैं स्पेशल जी, इनको वेलकम करता हूँ, शुक्रिया आपका। और हमारे बरकत पिया साहब और मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब, परवेज साहब, अर्जुन अजीज, सब जानते हैं पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। आगा नदीम साहब सब जानते हैं। और जो यहाँ दीगर मेहमान गिरामी बैठे हैं, बरखुरदार सिकंदर, शुक्रिया आपके आने का। राजा गफूर असद साहब शुक्रिया। और हमारे मौजूद वीरो मुर्शद बुखारी साहब तशरीफ फरमाए। और मेरे प्यारे दोस्त मुझे कुरैशी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे बाद इन्होंने खूब जिम्मेदारियां निभाई हैं। बहुत खूब जी चौधरी नासिर महमूद साहब। ये तकरीर के अंदर ये कोई ना समझे, हम पाक फ़ौज जिंदाबाद है और हम पाक फ़ौज के हामी हैं। अगर उनमें कोई लोग ऐसे हैं तो ज़रूर उनकी निशानी होनी चाहिए, लेकिन हम पाक फ़ौज जिंदाबाद है, पाक फ़ौज के हामी। कवर अप कर रहे हो तो हाँ जी, नहीं देखें कोई गल जमहूरियत वो चीज़ मैं ख़ास तौर पे सबसे पहले दो बंदे जो कि बहुत दूर से तशरीफ़ लेके आए, हमारे मोहम्मद अशरफ ईरानी साहब उडनसे से, मैं उनका नहायत ही मशहूर हूँ कि वो इतने दूर से तशरीफ़ लेके आए। बहुत बड़े जियाले हैं हमारे, मेरा ख्याल है 70 की दिहाई से लेके मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि उस किसी मुकाम पे इनकी घर हाजिरी हो, और मैं इनका दिली तौर पर मशहूर हूँ। और दूसरे जो हमारे मेहमान महलमों से तशरीफ़ लेके आए, कामरान कुरैशी साहब, और बाकी आखिर में एक बार फिर तमाम सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमात, मसाजिद, मराकज़ के लीडरान, नुमाइंदगान, उलमा, स्कॉलर्स और दीगर अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क के अहदेदारान की दावत पर तशरीफ़ लाए और आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगे। अब क्योंकि प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, मैं दुआ के लिए मुल्तमिस हूँ सैयद इजाज़ हुसैन बुखारी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुआ करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम खाना खाएंगे और इंशाअल्लाह। एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास सारे तिलावत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जो कलाम मिलत की तीसरा सा अल्लाह ताला ने वाल में पाक
बाकी मेरे जितने मोहतरम साथी जो मुझसे पहले मुकर्रर गुजरे हैं, उनको ये सहूलत हासिल थी कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरे लिए अल्लाह पाक ने आसानी पैदा फरमा दी कि मोहतरम तारर साहब को भेज दिया, जिन्होंने मेरी गुफ्तगू का इब्तदाइया जो उन्होंने शुरू करवा दिया, मेरे लिए आसानी हो गई। हाज़रीन अज़ीज़, मुझे दुआ के लिए हुक्म दिया गया है। आपके हुक्म की बजावरी मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। शाह साहब आप जमहूरी हक इस्तेमाल करें। नहीं, आप चंद अल्फाज सुनना चाहेंगे। मुझे मोहतरम मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब ने हुक्म दिया था कि मैं 2-3 जुमले हैं जो वो ज़रूर कहूँ। माशाअल्लाह। उस रियायत को इस्तेमाल करते हुए और जो यहाँ आपका भी मुझे कंसेंट मिल गया है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दस्त बदुआ हैं कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, दुआया तकरीब में हमारी शमूलियत है। अल्लाह करीम सबका इस दुआया तकरीब में आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस मरहूमा मगफूरा के लिए दुआ के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अल्लाह करीम उनके दराजात बुलंद फरमाए, उनकी आखिरत की ज़िंदगी को आसान फरमाए और यौम हशर उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। मोहतरम चौधरी नासिर महमूद साहब ने बहुत सारे जो कलीदी और पुराने रुफ़का हैं उनका तारुफ करवाते हुए बहुत सारे लोगों के मुतालिक आपको आगाही दिलाई। एक बात जो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि शायद आप में से बहुत कम लोग हैं जो ये राज भी जानते होंगे कि किसी ज़माने में सैयद एजाज हैदर बुखारी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हुआ करता था। ये मेरे ज़माना तालिब इल्मी का ज़माना है जो, उसमें मेरा भी पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है, जानते हैं। यार ताश की कमजोरी नहीं, माजरत वाली बात नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ तो शायद उस तरह का वो जो लगाव था, वो ताल्लुक था, वो कायम ना रह सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी वालों से अभी तक उसी तरह का ताल्लुक कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन निगरानी कदम में फ़कत एक जुमला और ये आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा कि जब हम किसी मकसद के लिए जमा होते हैं और बिलखुसूस दुआ के लिए, तो मुझे हमेशा गिला रहता है और मैं अक्सर इसका इजहार भी करता रहता हूँ कि जब हम दुआ के लिए जमा होते हैं तो हम दुआ को बस टोटल पूरा करने पर मुंतज करते हैं। उससे ज़्यादा हम यानी जो दुआ का असल मफहूम और मकसद है उसको हम भुला देते हैं, दुनियादारी में चले जाते हैं, दीनदारी को छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप किसी के लिए, चूंकि दुआ है, जो दुआ हज़रत अल्लामा डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इदरीस जावेद अल अज़हरी साहब की मौजूदगी में अगर मैं कुछ कहूँ तो सूरज को चिराग दिखाने, चांद तो बड़ा दूर है, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन हमारा रब हमसे ये कहता है कि वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि जब और हुक्म हुआ कि आप फरमा दीजिए कि आपका रब ये कहता है। नबी पाक को क्या हुक्म हुआ कि आप फरमा दीजिए आपका रब कहता है मुझसे मांगो अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो जब हम किसी के लिए मांगे तो कम से कम ऐसा जरूर मांगे जो हम अपने लिए चाहते हैं। और एक मरतबा हजरत मौला कायनात सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम आप दुआ फरमा रहे थे, तो गालिबन उसके जो जुमला था वो सीगा है जो वो वाहिद का था, अकेले अपने लिए कुछ दुआ फरमा रहे थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ तो आपने सुना, तो आपने ये फरमाया, अली तुम यूं क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह इसमें सबको शामिल कर दो
اور جب آپ باقیوں کو بھی شامل کر لیں گے آپ کا حق یقیناً اتنا ہی رہے گا, آپ کے حصے میں سے کمی نہیں آئے گی. تو کوشش کیجئے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں ایسی کم از کم ضرور کریں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں, اور اس میں دنیا داری کم ہو, اخلاص زیادہ ہو. مجھے بڑا اچھا لگا, میری گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک رستہ بنا دیا محترم تارڑ صاحب نے, کہا جی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو کوشش کیجئے کہ جہاں کہیں بھی ہم دعا کے لیے جائیں, یہ اس کا اہتمام ہے جو دعا کو خوبصورت بنانے کے لیے کم از کم اتنا, اور اس کو لپیٹ لیں. اگر درود پاک کے غلاف میں اول و آخر درود پاک ہو جائے تو دعا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی قبول نہ, کیونکہ دنیا کی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے. نماز رد ہو سکتی ہے, زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے, حج منہ پر مارا جا سکتا ہے. فقط ایک چیز اللہ پاک نے رکھی ہے جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے, وہ ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جب اس پر درود بھیجا جائے تو 100% نہیں 1000% اس بات کی گارنٹی کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جس میں درود پاک شامل ہو. تو میری اس مختصر گزارش کو اگر قریشی صاحب سمجھیں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, تو تمام احباب مل کر ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ کی اشارے ثواب کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مولا کریم, ہم سب کا مسجد میں محترمہ مرحومہ مغفورہ کی ایصال ثواب کی محفل میں, تعزیت کی محفل میں یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کلمات طیبات ادا کیے گئے, یہاں پر تلاوت ہوئی, نعت پاک پڑھی گئیں, مواعظ حسنہ ہوئے, اس کے علاوہ جو تمام اذکار کیے گئے, کلمات طیبات پیش کیے گئے, ان سب کو جمع کر کے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جبھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں, قبول فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے یہاں مسجد میں جتنے حاضرین موجود ہیں, ہمارے والدین میں سے, بہن بھائیوں میں سے, دوست احباب میں سے, رشتہ داروں میں سے, اولاد میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہوا, اس کو بھی اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ مغفورہ, ان کی روح کو اس پاک کلام کا ثواب ایصال کرتے ہیں, قبول فرما. اس کی برکت سے ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما, اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. یوم حشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. یا مولا کریم, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. بہت شکریہ جی محترم سید اعجاز صاحب. اب یہ کھانا تیار ہے پیچھے, تو آپ پلیز ذرا ایک ایک ٹیبل اٹھ کے پیچھے سے کھانا لے لیں اور بیٹھ کے آرام سے.